webinar on IIT NEET Foundation by Universal Tutorials. We would start in another 2-3 more minutes. So till that time, I would request all of you to please try to put on your videos so that I know that I'm not talking to walls and I'm not talking to a video screen. I'm talking to physical parents. Thank you, Harita, for putting on your video. So 2 requests. One is please put on your screen names as your student names. So confirm, are you able to hear me? Ummapati Rao has asked, is it started? I can't hear anything. Ummapati, are you able to now hear me? Please confirm. So I have Samarth Pandey. Thank you very much for starting the video. Samarth Vanhalakar, again, whose video is on. Vivan Chavan, Yaksh Trivedi. Then we have Ranveer, we have Paritosh, Vedant. Students, please keep your screen names as your name. If you have your father or your mother's name as your screen name, I would request you to change it and make it as your own name. So, still we have students joining in. So, and I would request jitne bhi bachche maximum video on kar sakte hain. If your surroundings permit, please put on your videos. आज we are going to talk about, now this is the first session on career planning के ऊपर sessions हैं, and जैसे हमने welcome session में बोला था, so I'm doing an informal talk till I formally begin, so people are joining in, so allow people to join in, and another 2-3 minutes we'll start. So till that time, this is the first talk which we always do, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप part of our 9th and 10th standard, तो आपको अगर IIT NEET Foundation की तैयारी करनी है, तो how UT can help you is part of that. So that's the talk which I'll be doing for the next. It's a small talk, not more than 30 minutes. उसके बारे में बात करूँगा. So I think let's have people joining in now. Before I get started, तो एक चीज, all of you to ensure that you get the best experience. जो मेरे colleague Manish sir, he is not able to join in today, but I'll request कि आप सब लोग Zoom में use speaker mode. On your top left hand side corner पे view आता है, उसमें से select the speaker mode. So request to please use the speaker mode. अगर आप speaker mode use करेंगे तो आपको सबसे अच्छा experience आएगा. And I will be sharing my presentation. तो मैं अभी वो share करके चालू करता हूँ मेरी presentation. So I hope all of you are able to see this presentation. So this is how the screen would look like. So I would request आप इसके हिसाब से अपना सब कुछ adjust कर लीजिए. So this is how the presentation would look like, and it would run for next 30 minutes or so. So if all of 1 or 2 of you may confirm, सब आवाज और presentation बराबर से दिख रही है? Can I get started now? I think it's time also. Yes, for me. sir. Thank you very much. Yes, Yeah. sir. So Yes, it's 6, so let's get started. Thank you very much. So let's get started. I would mute this thing. Who's the मैं कर रही हूँ, co-host हूँ. मेरी co-host हटा दो ना. सर मैं हटाने, मुझे host बना दीजिए, मैं हटा देती हूँ. Okay, so that I don't get to. एक second. Make host. ज्योति, मैंने आपको host बना दिया है. So I would like it this way so that you keep admitting people, so that वो आवाज मेरे को disturb नहीं करती है. ज्योति, are you fine now? Yes, sir. चलो. Everybody, let's get started. Myself is Anubhav Sinhal. So here we are on this presentation, which is IIT NEET Foundation by Anubhav Sinhal, Director, Universal Tutorials. ये जो मेरी फोटो है, मैं ये फोटो चेंज नहीं करना चाहता हूँ. This is where जब मेरे बाल हुआ करते थे, तो I still like this photograph, but I'm in front of you how I look today. So let's get started. What is the agenda today?
Agenda today is I will shortly talk about IIT NEET के बारे में बात करूंगा. Then I'll talk about UT and foundation की तैयारी कैसे करनी चाहिए. I will share my 23 years of experience. I am doing this since December 98 and I've trained more than 30,000 students. और अब as a father I have trained my son also. अभी तक as a professor ही train करता था, but last year my son also went through it and he's passed out and he's gone through it. So you know that's a very big thing कि I have now also seen this experience on the other side of the table also. So वो मैं एक experience आपसे share करूँगा. And I will then talk about Olympiad exams. क्या क्या Olympiad exams के हैं? And then what is our strategy? So ये एक छोटा सा agenda है जो मैंने बनाया है. And then I will be available for question and answers. Since it's a large audience, about more than 70 participants are already there in this. So I would request कि आप questions कुछ आते हैं आपके मन में तो एक pen and paper में तभी की तभी लिख लें, because एक tendency होती है अपन फिर उस time पूछ नहीं पाते हैं तो भूल जाते हैं. Now will I'll take questions then and there? No, I will not be able to take questions then and there because it's a large audience. So अगर छोटा audience होता है तो I'm able to take questions, but since it's a large audience of more than 70 students, so it will be a good idea कि आप तभी की तभी questions लिख लें. At the end of it, we'll be doing question answers. How much time it should take? I think another 25-30 minutes. I'll wind up my presentation and then I'll be available for question answers. चलिए, let's get started about IIT NEET key challenges. Now, I think IIT NEET, as everybody would understand, what is IIT? If I may ask, मेरे को कुछ बच्चे सामने दिख रहे हैं. Samarth, if you can unmute yourself, can you tell me what is IIT? What is the full form of IIT, Samarth? Samarth Pandey में Indian Institute of Technology. Correct. इसका क्या एग्जाम होता है आपको मालूम है इसके बारे में? तो just 2 minutes unmute रखो, फिर when I tell you to mute it तब mute कर लेना. Before I get on, बोलो समर्थ पांडे. कब होता है इसका एग्जाम? This is for an engineering entrance. There were originally 5 IITs. Now there are 23 IITs. They all in together admit about 3,000 students को admit करती हैं ये IITs मिला के. नहीं, अब 10,000 students को admit करती हैं. हमारे जमाने में 2,000-3,000 students को admit करती थी. But now about together all these IITs admit 10,000 students. So इनके लिए एक एग्जाम होता है. इस एग्जाम में all over India about 12.5 lakh candidates appear होते हैं. और उसमें से selected students only get selected for this. And this exam happens after standard 12. That's about IIT. Now let me ask, I have another Samarth with me. Samarth, would you know what is NEET? N-E-E-T. Medical entrance exam. Yes, this is a national eligibility entrance test for medical. All medical colleges में अगर आपको entrance लेना है, तो इसमें करीब total all over India जितने भी medical and private medical colleges हैं, around 80,000 seats हैं. कितनी seats हैं बेटा? 80,000. And कितने बच्चे appear करते हैं? करीब 15 लाख, 15 lakh students appear for this exam. So this is why these two are very key competitive exams. तो अब इनके सबसे पहले challenges क्या क्या हैं? Challenges, we've understood what are these exams. Timeline. ये exams कब होते हैं? ये exams होते हैं 12th के board exams के बाद. 12th का board exam आपका मार्च में होएगा. Whichever year you will appear for 12th, उसके मार्च में this board exams will happen. सिलेबस कवरेज क्या होगा? इन दोनों में सिलेबस कवरेज 2 साल का होता है. 11th plus 12th का सिलेबस कवरेज होता है. बोर्ड एग्जाम में कितने साल का सिलेबस आता है? बोर्ड एग्जाम में 1 साल का सिलेबस. बोर्ड एग्जाम में यू आर आस्क्ड ओनली 1 year. एंड इन एग्जाम्स में कितने साल का सिलेबस आता है? 2 years, 11th plus 12th. सो ऐसे सिलेबस कवरेज. नाउ द चैलेंज इज कि आप अभी 9-10th में हो, आप अभी से, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अपन ने बोला उसमें 10-12 लाख में 10,000 बच्चों में सिलेक्ट होना है. उधर 14 लाख में you have to come in the first 80,000. It's very competitive. So can we do something कि इसको जल्दी चालू करें? And ये एक जनरल थिंग है. So these are the big key challenges. It's a very tough exam. तो क्या इसके लिए अभी से कुछ कर सकते हैं? तो लेट्स सी अभी से क्या कर सकते हैं. तो ये बोर्ड्स एंड ओलंपियाड्स का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल डिबेट है कि कौन सा एग्जाम लिखना. अगर हमको चालू करना है तो ओलंपियाड, बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं. तो कौन सा लिखना चाहिए वो एग्जाम, और ये कब लिखने चाहिए ये एग्जाम? ये कब अलग अलग होते हैं? बाबा एटॉमिक वाला कभी अलग करता है, एसओएफ वाला कभी अलग करता है, एनटीएससी कभी अलग करता है. तो फाउंडेशन में कब लिखना चाहिए ये एग्जाम्स? कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इन एग्जाम्स के लिए? एंड हाउ मच इंपॉर्टेंस टू गिव?
सो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, ये क्वेश्चंस मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इन दिस टुडेज टॉक. So इसमें आगे बढ़े. What has been the traditional strategies? Traditional strategies is start very early. People start for these IIT NEET exams 6-7 standard से कोशिश करते हैं, अभी से ही फाउंडेशन में लगा दो, अभी से ही वो बच्चा पढ़ेगा तो वो हो जाएगा. और without any clear direction, lot of students and parents get into writing all kinds of exams. इससे होता क्या है? What I have seen is स्टूडेंट का इंटरेस्ट अभी तक चेक ही नहीं करा है कि इज ही इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, इज ही इंटरेस्टेड इन मेडिकल, एंड बस वो एक भेड़ चाल जैसे यू गॉट इनटू इट और यू गॉट स्टार्टेड. अब इससे चक्कर क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है. मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये फाउंडेशन के करने में. कहावत आपने सुनी हो, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. कि आपके पास एक है, अब आप उस दो वहां पे दिख रही हैं, उसको लेने के चक्कर में आपकी वो एक भी उड़ गई. सो दिस इज व्हाट आई डोंट वांट स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस. सो व्हाट इज दैट वी एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स हैव बीन डूइंग? सो व्हाट इज दैट वी एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स हैव बीन डूइंग इज, लेट मी एक्सप्लेन नाउ व्हाट has been the UT strategy. UT strategy has been, सबसे पहले चेक योर पोटेंशियल. आप अपने पोटेंशियल को चेक करो कि आप में ये पोटेंशियल है, इंटरेस्ट है या नहीं. अब ये कैसे, वो सब मैं समझाऊंगा एक एक करके. देन चूज फोकस ऑन वन एग्जाम. कि भाई आप इंटरेस्ट किधर है आपका? सिर्फ ये IIT NEET आर नॉट दी जस्ट वन सिंगल एग्जाम्स, बहुत सारे और अदर एग्जाम्स हैं. अगर आपको डिजाइन में जाना है तो NIT का एक अलग एग्जाम है, आर्किटेक्चर में जाना है तो नाटा का एग्जाम है, आपको बाहर कहीं पढ़ने जाना है तो SAT का एग्जाम है. सो वी एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स हम क्या कहते हैं, आप सबसे पहले, एंड दैट्स वेयर एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स व्हाट वी हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम क्या करने लग गए हैं, हम बच्चों को ये जो सेमिनार्स कर रहे हैं, यू विल सी दीज वेबिनार्स हैपनिंग एवरी संडे, नॉट एवरी संडे, एवरी सेकेंड संडे. ये वेबिनार्स होंगे और इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को डेल्व करेंगे. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग तो उसमें क्या क्या है, मेडिकल है तो उसमें क्या क्या है, स्टडी अब्रॉड है तो उसमें क्या क्या है, कॉमर्स है तो क्या क्या है, डिजाइन है तो क्या क्या है, आर्किटेक्चर है तो क्या क्या है. ऐसे पूरे साल भर ऑन वेरियस संडेज वी विल टॉक ऑन वेरियस करियर प्लेटफॉर्म्स. एंड उधर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गैदर करो कि किसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, क्या मेरे लिए सूटेबल है, एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन एग्जाम. सो अगर आप ऐसे करेंगे तो हमको लगता है कि दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एक फोकस तैयारी होती है, समझ में आता है. मूविंग अहेड, सो चेक योर पोटेंशियल, चूज फोकस ऑन वन एग्जाम. एंड हमको ये लगता है, वो कहावत, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. बोर्ड एग्जाम इज द प्राइमरी मदर एग्जाम. इसमें जो भी एजुकेशन वाले, जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, जिन्होंने 10th CBSE 10th ICSE के बोर्ड एग्जाम का करिकुलम क्रिएट करा है, जहां पे सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंसेस, बेसिक साइंसेस करी हैं कि बच्चे को 10th स्टैंडर्ड तक तो ये बेसिक पढ़ना चाहिए, आई थिंक आर वेरी नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट्स आगे के पूरे फुलफिलिंग जीवन के लिए. कई सारे बच्चे हैं जो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं. आई हैड वन स्टूडेंट, आई लाइक टू टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आप ही ऐसा बच्चा था, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 25 इयर्स नाउ. एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया है. श्रीश अग्रवाल करके एक बच्चा था. जैसे आप अभी 9th-10th में आए हैं, वो बच्चा हमारे साथ 9th-10th में जुड़ा था. He studied with us for 10th and 12th में पढ़ा. तो तब तक वो इतना सीरियस नहीं था. 10th ऐसे ही करा उसने, 12th भी ऐसे ही करा उसने. देन उसके बाद वो थोड़ा सीरियस होना चालू हुआ लाइफ में, और फिर उसने इंजीनियरिंग करी. अब इंजीनियरिंग में उसका उतना रुझान आया नहीं, तो इंजीनियरिंग के बाद, विच इज द टिपिकल जर्नी, ऐसा नहीं है Shirish इज वन ऑफ केस, Shirish इज मोर ऑफ अ रेगुलरिटी देन एन एक्सेप्शन. इंजीनियरिंग करी, यहाँ पे सुमैया से इंजीनियरिंग करी उसने. उसके बाद उसने सीरियस होना चालू हुआ और वो अपने पढ़ाई में ध्यान देना चालू करा. देन Shirish आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद ही वांटेड टू डू MBA.
और उसने बोला कि मेरे को तो एमबीए फाइनेंस में जाना है, दैट्स व्हेन ही रियली फोकस्ड हिमसेल्फ कि मेरे को ये करना है। एमबीए में एक एग्जाम होता है कैट का, फॉर आईएएम एग्जाम्स, ही अपीयर्ड फॉर दैट कैट एग्जाम, और वो ना मेरे को उसने समाव ही मेरा और उसके साथ थोड़ा रिलेशन बैठ गया था, तो मेरे को साल में 1-2 बार फोन जरूर करता था, शायद गुरु पूर्णिमा वाले दिन या कभी मेरे को फोन करता था और बताता था, अनुभव सर मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये तो एक बार उसने फोन करके बोला सर आपको एक गुड न्यूज है। मैं बोला क्या गुड न्यूज है? सर आई हैव स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल इन कैट आईएएम। This is no mean achievement. This is a very big achievement. I was excited, delirious. मैं बोला अरे वाह बहुत बढ़िया यार शिरीष, तूने तो फोड़ दिया, you've done excellently well, exceedingly well. बोले सर अब ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरा आईएम से कॉल आ, भाई ब्लेसिंग्स है, करो आगे। सो देन फिर उसका 2-3 महीने बाद टच किया कि शिरीष क्या हुआ, तो ही सेज नहीं सर आईएम से कॉल नहीं आया। मैंने क्या बोला, क्या बात कर रहा है यार, यू डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम आईएम, कहीं से भी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कहीं से भी कॉल नहीं आया? बोले नहीं सर। क्यों? सर वो तब आप बोलते थे ना, सुनते नहीं थे कि 10th स्टैंडर्ड में आपको मालूम है 78% मार्क्स थे, 12th स्टैंडर्ड में और कम मार्क्स, तो वेटेज है आईएम की, तो आई वाज ऑलमोस्ट द इंडिया टॉपर हूं मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वेटेज आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम एनी आईएम्स। Now that's when you realize the importance of board exams, because board exams are overall exams. तो उसको नहीं मिला, फाइनली उसने एमबीए केजे सोमैया से करी, जहां से उसने अपनी इंजीनियरिंग करी। अब केजे सोमैया आईएम अहमदाबाद, बहुत बड़ा अंतर है उन कॉलेजेस में, अगर वो आईएम से निकलता तो कहीं और जाता, अब उसकी वो चेंज हो गया। सो दिस इज वेयर आई टेल स्टूडेंट्स कि इंश्योर बोर्ड एग्जाम, एक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश वाली कहावत है, एक के लिए भागे भागो। मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी, प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स वेरी नाइसली, एंड ऐसा नहीं है कि अपन फोकस नहीं करेंगे, उनका भी फोकस करें, तो क्या फोकस करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ, एंड देन अचीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो मैंने बोला कि ओलंपियाड के एग्जाम्स 9th-10th में बहुत सारे ओलंपियाड के एग्जाम्स, एंड देयर आर मेनी ओलंपियाड एग्जाम्स, और हम लोग ने पिछले करीब 25 सालों में सब अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तैयार करके ये मैं इस निष्कर्ष पे या कंक्लूजन पे आया। लेट मी टेल यू व्हाट। सो सबसे पहले एक ओलंपियाड के एग्जाम जो आपके स्कूलों में होते हैं, विच इज SOF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये बहुत सारे एग्जाम्स करता है, इन्होंने जितने तरह के एग्जाम्स हो सकते हैं उनका सबका एक ब्रांड बना दिया है। IMO इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, फिर IT का ओलंपियाड है, कंप्यूटर का ओलंपियाड है, फिजिक्स का है, सबके बना दिए हैं SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। और ये ग्रेड 1 से करना चालू कर देता है। ये आई वुड से I am not advising कि इन एग्जाम्स के लिए कुछ भी करना है। These are money spinners for the people who are doing this exam. They are not good quality exams. सिर्फ हर एक एग्जाम के वो 100 रुपए एक बच्चे से ले लेते हैं, सारे स्कूलों से टाई अप कर रखा है, एग्जाम की क्वालिटी कुछ नहीं है। I would not really recommend कि इसमें अपन को कुछ भी टाइम वेस्ट करें। So I am advising you, आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो लिख लीजिएगा, I would answer those questions at the end of the presentation. I would not advise कि इन एग्जाम्स के बारे में अपन को कुछ सोचना है। Next is NTSC. Have you heard of this exam? National Talent Search Examination. It's a two-stage exam. First stage, this is conducted by CBSE. First stage is conducted by individual state boards. And second stage is conducted by CBSE. अब इसके साथ इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, बहुत रेप्यूटेड एग्जाम है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसका फर्स्ट स्टेज कौन कंडक्ट करता है इधर अपने महाराष्ट्र में? हु कंडक्ट्स इट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट्स इट। सो इट इज कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और उसमें एक SST का पेपर आता है, जिसमें SST में दे आस्क यू सोशल स्टडीज ऑफ लोकल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आप सब CBSE और ICSE के बच्चों के लिए आपको एडिशनली, देखिए मैथ्स एंड साइंस CBSE और स्टेट बोर्ड की सेम है, लेकिन SST सेम नहीं है। दे स्टडी अ लॉट ऑफ लोकल शिवाजी पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आप शिवाजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं स्टेट बोर्ड के बच्चे, और आप लोग वो नहीं पढ़ते हो। यू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, यू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री। सो अगर आपको इस एग्जाम में कंपीट करना है तो यू हैव टू स्टडी फॉर सोशल स्टडीज। नाउ देयर यू आर नॉट अलाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स करेक्टली, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको IIT की तैयारी करानी है,
NTSC is not helping you to prepare for IIT. सोशल स्टडीज IIT में नहीं पूछा जाता है. सो क्या हम ये रिकमेंड करते हैं? नहीं, हम ये नहीं रिकमेंड करते, हम इसको भी नहीं रिकमेंड करते. नेक्स्ट, जूनियर साइंस ओलंपियाड. अगेन वेरी गुड क्वालिटी एग्जाम्स कंडक्टेड बाय होमी बाबा, बट इनका सिलेबस बहुत बहुत वाइड सिलेबस है. दे कवर फिजिक्स, दे कवर केमिस्ट्री, दे कवर बायोलॉजी. हम अगेन कहते हैं कि ये सिर्फ बहुत सिलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट्स करें जो एक्चुअली ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स हैं. एंड ब्रिलियंट में मैं 2000 बच्चों को ट्रेन करता हूं हर साल. उसमें मैं बोलता हूं जूनियर साइंस ओलंपियाड में शायद मैं 4 या 5 को ही सैंक्शन करूंगा कि बेटा आप इसके आगे पढ़ो. नहीं तो दिस वी डू नॉट अगेन रेकमेंड, बिकॉज इतना बोझ डालना अभी इज नॉट वर्थ इट. You would not study. Again, इसके बारे में questions Q&A में आप मेरे से पूछेगा, so I'll be able to help you over here. Reserve your questions, लिख के रखिए कि सर से कुछ पूछने तो ये बताऊं. तो सर आपने सबको ही ना 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 बोल दिया, तो आप किसको रेकमेंड कर रहे हो? हम रेकमेंड कर रहे हैं कि we would only focus on exam called as Maths Olympiad, which is conducted by Homi Bhabha Center, widely recognized. हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं. So I keep this slide for 30 seconds before I move on to the next slide. So this is what we think should prepare. Now let's understand what's our objective. Our objective is to prepare for IIT IIT and NEET के लिए prepare करना है. तो हमको हमारी analytical skills को बहुत improve करना है. सर मेडिकल में तो मैथ्स चाहिए नहीं होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा कैसे चाहिए, वो क्या है. So this is where I would come to. Now let's move on to the next slide. Why RMO? Why RMO? Maths is fundamental to all streams. आप चाहे IIM करने के लिए IPM AT का एग्जाम लिखेंगे आगे जाके, आप स्टडी अब्रॉड में SAT का एग्जाम लिखेंगे, आप NID में कोई एप्टीट्यूड एग्जाम लिखेंगे डिजाइन में, आप किसी में भी लिखेंगे, सब में मैथ्स इज वेरी वेरी फंडामेंटल. सर बायोलॉजी में तो नहीं है फंडामेंटल. हाँ बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये जो RMO में जो बेसिक मैथमेटिक्स की एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है वो उधर भी बहुत फंडामेंटल है. सो आई थिंक मैथ्स का ये वाला जो प्रिपरेशन है इज एक्चुअली मेकिंग यू, ये जो IIT नीट के जो एग्जाम्स हैं ये आपकी बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं. एनालिटिकल स्किल्स इज दे आर एक्चुअली मेकिंग यू थिंक इन एन एनालिटिकल. क्या आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, क्या अब इसका आप अप्लाई करना आता है क्या आपको? सो ये जो RMO में जो आप कर रहे हो वो बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स को आप सीख रहे हो जो आपकी एप्लीकेशन एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करते हैं. और ये एग्जाम बहुत बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, डुएबल होता है, फोकस्ड होता है, और अपन को जो ऑब्जेक्टिव है कि अपन को जो फाउंडेशन करनी है वो फाउंडेशन पहले अचीव होती है. नेक्स्ट, इट्स वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी. एग्जाम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड इट मोर और लेस मीट्स आवर ऑब्जेक्टिव. तो ये रीजन है व्हाई वी आर सजेस्टिंग RMO. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज RMO. अबाउट RMO समझने की कोशिश करते हैं. ये RMO 4 टाइम आपकी लाइफ में होता है. सो ये एग्जाम आप जब आपकी 8वीं कक्षा में हो तब से लिखना चालू कर सकते हो. यू कैन राइट इट इन योर 9th स्टैंडर्ड, यू कैन देन राइट इट इन योर 10th स्टैंडर्ड, you can also write it in your 11th standard. तो 8वीं 9वीं 10वीं 11th in all these years again आपके कुछ questions होंगे तो write down your questions and ask me during the Q&A. आपकी जिंदगी में स्टूडेंट की लाइफ टाइम में 4 साल लिख सकते. तो at any given point of time you can write it 4 times. It is conducted by Homi Bhabha in 4 stages. तो 4 बार लिख सकते हो and हर बार 4 stage. Are you understanding? 4 बार और हर बार 4 स्टेज. इसको मैं समझाता हूं हर बार 4 स्टेज का क्या मतलब. लेट्स मूव ऑन. सो ये 4 स्टेज कैसे होती है? एक साल में अगस्त में प्री RMO एग्जाम. सो अगस्त में यू हैव अ प्री RMO एग्जाम. तो इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एग्जाम होता है. तो जो बच्चे लिखते हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट होते हैं तो दे गेट इनटू RMO एट नवंबर में. RMO लेवल होता है रीजन लेवल. तो प्री RMO इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो रायगढ़ में से बच्चे सिलेक्ट होंगे, नवी मुंबई में से बच्चे सिलेक्ट होंगे, एंड देन वो सिलेक्टेड बच्चे विल गो टू स्टेट लेवल एंड रीजन महाराष्ट्र लेवल पे एक एग्जाम होगा जो नवंबर में होगा. अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो फरवरी में
इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, नेशनल लेवल पे आप जाओ एंड आप उधर सिलेक्ट हुए तो जून में आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। तो आप 8th में एग्जाम लिखोगे, पहली बार आप अगस्त में लिखोगे। और अगर आप सिलेक्ट हुए ऐसे कर करके आप इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सिलेक्ट हो। अब सपोज आपने 8th में लिखा और आपका प्री आरएमओ में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बस खत्म, देन दैट ईयर यू कैन नॉट प्रोसीड। अगेन इन 9th आपको वापस चांस मिलेगा कि आप वापस प्री आरएमओ लिखो अगस्त। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? अब सपोज अगर आपने क्लियर कर लिया कि आपने 9th में या 10th में प्री आरएमओ क्लियर किया, देन यू गेट टू गो टू द सेकंड स्टेज। अब आपने उधर सेकंड स्टेज करा, लेकिन सेकंड स्टेज में आगे क्लियर नहीं कर पाए, तो इन 11th कैन यू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड स्टेज ऑनवर्ड्स? नो, यू हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। एवरी ईयर 4 स्टेजेस, एंड ये आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो? 4 बार, 8th में, 9th में, 10th में, 11th। Has everybody understood this 4 stage exams? Now, what is our UT की strategy with RMO? Our UT की strategy with RMO is this. आप सब बच्चे जो पार्ट ऑफ UT हो, हम अप्रैल के महीने में, that is now, we are starting with a screener 1. अगले हफ्ते on 24th of April सुबह 10 बजे we have the first screener exam, जहां पे हम पोटेंशियल चेक करेंगे। देखिए, अगर आप में पोटेंशियल है तो ये एग्जाम लिखना है, नहीं है पोटेंशियल तो फिर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स नॉट वेस्ट आवर एनर्जी, अपन अभी बोर्ड एग्जाम पे फोकस करें। तो पहले दिन हम पोटेंशियल चेक करेंगे, फिर अगर होगा तो हम ओलंपियाड की बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, और साथ साथ में ये बेसिक ओलंपियाड की कब होगी? एवरी संडे मॉर्निंग 8 o'clock क्लास होगी। तो आपकी जो टेस्ट हो रहे हैं और हम मंडे टू सैटरडे जो यूटी के वो कवर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन उसके साथ साथ 6 हफ्ते की वी वुड स्टार्ट अब बेसिक ट्रेनिंग चालू कर देंगे, जो अप्रैल और मई में चलेगी। 6 weeks ट्रेनिंग, इनफैक्ट इट विल गो अप टू फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जाएंगे। सो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों के लिए हम संडे क्लास करेंगे, एंड दोज पीपल हु गेट सिलेक्टेड हैव टू पे अ स्मॉल सम ऑफ 1800 रुपीज, 1800 रुपीज का सम पे करना है, एंड देन यू एनरोल्ड इन ओलंपियाड बेसिक कोर्स में आप एनरोल। फिर हम जून में एक छोटा स्क्रीनर 2 वापस डिसाइड करें। अब कई बच्चे होते हैं एंड दे रियलाइज नो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है, एंड आई डू नॉट वांट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो यू सी द एक्सपीरियंस, यू गेट द एक्सपीरियंस, सब कुछ देखो आप उसमें, एक्सपीरियंस है, और फिर यू मे एग्जिट योरसेल्फ, या हम ही बोल देंगे नहीं आप आगे मत कंटिन्यू। तो जून 2nd वीक में एक स्क्रीनर 2 होगा। अगर वो स्क्रीनर 2 आप कर लोगे, स्क्रीनर 2 आपने अटेंड किया और उसमें क्वालिफाई हो गए, तो फिर हम आपको एडवांस्ड कोर्स में ले जाएंगे, ओलंपियाड एडवांस्ड, और फिर हम आपको प्री आरएमओ और आरएमओ की तैयारी करवाएंगे, और अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया तो आपको आगे तक लेके जाएंगे, नहीं तो वी विल गो अप विद द बोर्ड एग्जाम्स। सो अगेन 30 seconds आई वुड रिमेन विद दिस स्लाइड। किसी को इसकी फोटो खींचनी है तो आप फोटो खींच लें, एंड आई वुड अगेन कम बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स टू इट। आप मेरे को बोलिएगा सर इस स्लाइड पे क्वेश्चंस हैं, तो आई विल कम बैक एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइमलाइन? सो टाइमलाइन ये वापस, सो अप्रैल वापस जो मैंने बोला उसी चीज को मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अप्रैल में हम बोर्ड को 60% कवर करेंगे मंडे टू सैटरडे में। जून से अक्टूबर को 2 ट्रैक चालू हो जाएंगे, जो बच्चे एडवांस में चले जाएंगे वो ओलंपियाड पे फोकस करेंगे, और जो बच्चे बोर्ड पे रहेंगे वो बोर्ड पे फोकस करेंगे। अगर वो ओलंपियाड वाला बच्चा है, वो भी बाय नवंबर तक उसको क्लैरिटी आ जाती है, यार मेरे को ये समझ में आ गया, देन यू कम बैक टू बोर्ड्स। तो दिस इज अ ब्रिलियंट फाउंडेशन, जहां पे हमने दोनों चीज को कवर कर लिया। अपन को जो फाउंडेशन चाहिए थी वो भी मिल गई, और बोर्ड की भी हमने बहुत अच्छी फोकस की। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग इट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आरएमओ का स्क्रीनर का पैटर्न क्या है? स्क्रीनर का पैटर्न इज इट्स ऑन 24th of April, संडे 10 AM को है। रिपोर्टिंग टाइम इज 9:45, आपको 9:45 रिपोर्ट करना है। इट विल बी फिजिकल एट, इट्स एन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, 50 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स, एंड नेगेटिव मार्किंग है +4 -1। आपको यूटी के सेंटर पे जाके ये टेस्ट लिखना है।
तो सारे बच्चे जो यूटी के सेंटर पे आएंगे उनको यूटी के सेंटर पे जाके ये टेस्ट लिखना है. Again, I'll wait for 2 minutes before I. तो 9:45 रिपोर्ट करना है और आपको कल व्हाट्सएप पे एक लिंक ओपन होगी. 18th से लेकर 21st तक ये लिंक ओपन होगी. जो बच्चे ये इसमें लिंक में रजिस्टर करेंगे उनको ये टेस्ट ऑल नवी मुंबई स्टूडेंट्स कैन राइट इट इन आवर क्लासरूम सेंटर्स एट ब्रांच. आउटसाइड नवी मुंबई कुछ बच्चे होंगे तो आपके लिए हम ग्रेडस्कोप करके हमारा एक ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे ये टेस्ट आपको ओपन करके देंगे. तो आप उसी टाइम पे दैट इज ऑन संडे 10 AM to 11:30 आप इस टेस्ट को ऑनलाइन ले सकते हैं. लेकिन ये लिंक ऑनलाइन की लिंक विल ओनली बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड ऑफ नवी मुंबई. अच्छा, इसका स्टेज 1 का रिजल्ट 2-3 दिन में डिक्लेयर होएगा आफ्टर 24th. जो टॉप बच्चे होंगे उनको दे विल देन प्रोसीड टू द बेसिक कोर्स व्हिच वुड बी अ 6-week कोर्स. यू हैव टू पे सम 1800 रुपीस और अगर उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे तो यू विल बी टेकन ऑन आरएमओ एडवांस्ड थिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस? वेरी पावरफुल प्रोग्राम. बोर्ड प्लस ओलंपिक का यूनिक कॉम्बिनेशन है. इसमें अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होता है, बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं एंड दे कवर बोर्ड्स एडिक्वेटली मंडे टू सैटरडे. ये छोटे से उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी तैयार होती है. प्रोग्राम इज वेरी अडेप्टिव. मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि ये प्रोग्राम अभी करना चाहिए. जो कर सकते हैं उन्हीं को करना चाहिए, बाकी बच्चों को बोर्ड पे फोकस करना चाहिए. So that वो bird in hand, two in bush वाला story now. And there is high success rate. We get very high success rate with this kind of an approach. हमारा एक बच्चा है आदित्य खुरमी. He's ranked first in Maharashtra and now he's pursuing his. He went on to pursue UMass में computer science कर रहा है. He did get selected in the NEET. IIT, NIT में selection हुआ था इसका, but he decided to go abroad. And he's now pursuing his Massachusetts mein he's pursuing his computer science degree. So people are doing wonderfully well with this kind of an approach. So what are the next steps? I'm now to the conclusion of it. Next steps is attend RMO stage 1 exam physical on 24th of April 10 AM at all UT branches. Get RMO result. Top 10% students ko milega ye. Attend RMO basic course 6 weeks in May and June, for second week of June तक. फिर जून में राइट डाउन सेकंड आरएमओ स्क्रीनर. अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए देन अटेंड आरएमओ एडवांस कोर्स. दिस विल रन अप टू अक्टूबर नवंबर. सो ये बेसिक नेक्स्ट स्टेप्स हो गए आपके फाउंडेशन के. नाउ आई एम ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. सो इफ यू हैव क्वेश्चंस एंड यू वांट टू मीट मी इंडिविजुअली, आपको मेरे से मिलना है, आपके बारे में बच्चे के साथ डिस्कस करना है, यू कैन कॉल अप सुरजीत. सुरजीत इज अवेलेबल एट 9137852270 एंड फिक्स एन अपॉइंटमेंट. मीट मी ऑनलाइन. मैं जूम पे मिलूंगा आपसे एंड वी कैन, आपको जो भी कुछ मॉडिफाई या ऐड कुछ भी करना है आप मेरे से बात कर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट. सो ये सुरजीत के साथ आप मेरे से इंडिविजुअली टाइम लेके मिल सकते हैं. एंड इफ यू वांट अ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस, तो ये नंबर है, इस पे एक हाई भेजो. व्हाट्सएप का नंबर है, तो यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. चलिए, नाउ आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. थैंक यू. सो आई विल कीप दिस स्लाइड ऑन एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर क्वेश्चन आंसर्स. सो अब आप, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. सो इट वाज अ वेरी क्विक 30-minute presentation. Now if you have any questions, please ask. Raise your hands and ask your questions. Yes, Sumanya Kashyap, please ma'am, unmute yourself and ask a question. Sir, what would be the timings for RMO basic course? You said 8 AM. 8 AM up till? 10 AM, up to 10 AM. In fact, they will wind up by 9:30. It's a 1.5 hour to 1 hour 45-minute class. 8 to, and they will be all online. It will be not physical classes. They will be online. Student could be from anywhere. This would be always an online class. And would it be every day during those 6 weeks or? No, only on Sunday mornings. So 6 Sundays basically. 6 Sundays, yes, in the basic course. And once you get selected in the basic course, then from June to October, it would be slightly more advanced course from Sunday only. Largely तब भी Sunday रहेगा, लेकिन उस time हो सकता है कि हफ्ते में 1-2 दिन और बुलाएंगे. Again, that would be 8 AM itself? Yes, and it will be Sunday morning. Sunday mornings. Okay. And some other holidays whenever it's a mutual holiday.
हाँ, तो ये जो पहले 6 weeks है, it will be all Sundays. From June onwards, it would be slightly more extensive, but it would be slightly only. Some other holidays may get added over there, not now. Okay, so that would be convenient for online students. Is that what you're saying? Yes, yes, and then because इसमें क्या selected बच्चे आएंगे, 8-10 बच्चे रहेंगे, it will be not a big batch. So online में जब छोटा crowd रहता है, and they may belong to different branch locations. Somebody may be from Kharghar, somebody may be from Vashi, somebody may be from a different branch. So all of them will be online जैसे अपन आज कर रहे हैं. So we are effect और ये let's understand ये जो batch है, ये हमने सीखा है मैडम, Zoom ने हमको सिखा दिया है, COVID ने 2 साल में सिखा दिया है. Let's understand Zoom की effectivity कहाँ पे आ रही है. जब बच्चा खुद सेल्फ ड्रिवन बच्चा है, he is more convenient with online classes. So ये वाला जो ओलंपियाड की क्लासेस हैं, this will remain always online because ये बच्चा सेल्फ ड्रिवन है. हमारे जो बोर्ड की क्लासेस हैं, they will be largely physical classes. वो तो सब physical हो ही नहीं है. So this will always be Sunday morning 8 to 10 a.m. is the tentative time of class. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Anandita Chakravarti, you have a question. Please unmute yourself and ask a question. Yes, sir. My question is for the Mumbai students. When will the RMO exam be held? On 24th itself, you will be onboarded to our testing platform called as Gradescope. Our team will call you and onboard you on our testing platform Gradescope before 24th. And on 24th, 10 a.m., you will write this exam online. You would not come physical. आप अपने घर से इस एग्जाम को Gradescope पे लिखोगे at 10 a.m. on 24th. Okay, and is there any specific portion for this exam or? Okay, very good question. No specific portion. In fact, आप normal तैयारी से वो एग्जाम को लिखो, so that आपका true potential आपको और हमको और आपके पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि आप वाकई में इसके लिए ओरिएंटेड हो या नहीं हो. सो आपकी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक वो है, उससे आप वो एग्जाम लिखोगे. सो एक ट्रू आइडेंटिफिकेशन होगी कि आपको इस एग्जाम में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो आपको बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए. सो आई वुड रेकमेंड जस्ट कम विथ योर नॉर्मल प्रिपरेशन. Okay, thank you, sir. Thank you. Samarth, you have a question. Please unmute and ask. Yeah, hi, this is Samarth's father. I just wanted to know, you mentioned that the pre-RMO would be in August. Yes, And, conducted by Homi Baba. Yeah, and this basic and the one advanced which you said which will start from April, and then in June the second when we go. So this is basically like he's in 10th. So this will be for preparing for the 11th grade RMO? No, for the 10th pre-RMO, which will be in August. Okay, so that this in you mean, but then you had mentioned that after June also till October the activity training. तो सर ओके, सो लेट मी टेल यू सर, अभी हम सर इसमें क्या होता है, जो होमी बाबा एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, होमी बाबा तो बेसिकली 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड सिलेबस पे बच्चों को एग्जाम कंडक्ट करता है. एंड वो वाला जो प्री आरएमओ का जो अगस्त में एग्जाम होता है, उसमें 8th ग्रेड का बच्चा भी अपियर होता है साइमल्टेनियसली, 9th ग्रेड का भी बच्चा अपियर होता है, 10th ग्रेड का भी बच्चा अपियर होता है और 11th का भी अपियर होता है. उनको चारों को अलग अलग लेवल्स ऑफ पेपर नहीं मिलते, उनको चारों को एक ही लेवल का पेपर मिलता है. No, I just wanted to know कि कैसे होगा parallelly. So like when if he gets selected, for example, April, May, then June you will start the basic. नहीं, फिर जून में एडवांस कोर्स चालू हो जाएगा. They will be preparing for the August pre-RMO के लिए प्रिपेयर करेंगे. Okay, okay, and that will go on till October. Sir, that will go on till the time अगर कोई एक बच्चा अगर हमारे लिए इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तक जाएगा, तो उस बच्चे के लिए वो बैच पूरा फरवरी तक आगे तक चलता चलेगा. Okay, okay, okay. And what about like he did not do this RMO for grade 8 and 9, so this would be the first attempt. So will that have any impact or does it? तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर, पूरे हिंदुस्तान से ऑल ओवर द कंट्री स्टूडेंट्स अपियर. जब ये अगस्त में पहली बार अपियर करेगा, सो ही विल हैव अ काउंटर पार्ट स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड अपियरिंग. Okay. अ काउंटर पार्ट स्टूडेंट 9th का भी अपियर हो रहा होगा, इसके साथ के 10वीं के बच्चे भी अपियर हो रहे होंगे और इसके साथ के 11वीं के बच्चे भी अपियर हो रहे होंगे. एंड दे विल ऑल बी राइटिंग वन पेपर ओनली. Okay. एंड ही वुड हैव दिस चांस अगस्त में, अगर क्लियर नहीं करा तो ही वुड हैव दिस चांस अगेन इन द मंथ नेक्स्ट ईयर इन 11th, ऑल ओवर अगेन.
अच्छा, वो लोग इसमें पूछते क्या हैं? वो लोग इसमें पूछते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सिलेबस पर्सपेक्टिव, दे आस्क वेरी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, नंबर सिस्टम्स पूछेंगे। Okay. दे वुड नॉट आस्क देम एनी ग्रेड 11th या ग्रेड 12th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, कि they would basically ask them very basic geometry, very basic algebra, very basic percentage, वो वाले probability sums जो ये बच्चे normally 8th 9th 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आर सो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स कि अगर इधर एक थिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है बच्चे की, so even attending that course, but attending तभी जब आपका उस तरफ orientation है, तो this would be a good foundation to begin with. Yeah, clear. Thank you so much. More questions? Any more questions? Sir, I had one question. Yeah, please ask your question. So, sir, after taking the exam for pre-RMO and then we are promoted to the next stage. So, like, if we go to the national and we get a certificate, so what will be its value in our future life? Okay. तन्मय, good question you asked. तो उसकी value कब आती है? जैसे for example, this boy of ours, he got selected in Maharashtra. He was ranked number 1 in Maharashtra. So he then wanted to pursue his studies abroad. So उसको abroad admission became very easy for him. UMass में computer science is not a very easy thing to get, but with this kind of an achievement, उसको बहुत easy मिल गया. बट अगर will you clear, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट या आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक चले जाते हो, तो MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन एडमिशंस या IISc या इनफैक्ट बहुत सिलेक्टेड फ्यू कैंडिडेट्स को IIT में भी, IISc में एडमिशंस डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत टॉप के बच्चों को मिलते हैं। सो आपको वो मिलता है, प्लस आपको फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा अच्छी तरह से करने पड़ते हैं। तो आपको दो फायदे हैं जो आपने पूछा। One is you get recognition abroad, and India में you get recognition in IISc and IITs, and abroad you get recognition. Second is आपकी foundational training. That's your answer to the question. Thank you, sir. Akanksha Sagotra, please ask your question. Sir, actually, I wanted to ask you that this RMO, you mentioned that it is for the foundation of for preparation for JEE, for getting into IITs. But suppose if one is interested in applying for the CET exams, so this RMO will be helpful for the CET as well? सर, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं सगोत्रा साहब, यू प्लीज अंडरस्टैंड, CET, IIT अभी में तो अगर आप बेसिकली समझेंगे, आई डोंट नो व्हाट्स योर बैकग्राउंड, इफ यू कैन अप्रिशिएट सर, इनमें इन्होंने अभी बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। इन्होंने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, इन्होंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ा, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा, इन्होंने अभी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे ऐसे जो एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो चाहे CET में आते हैं, चाहे एडवांस में आते हैं, JEE में आते हैं, सब जगह वो वाले कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इन्होंने वो तो पढ़े ही नहीं है बच्चों ने, ये सब बच्चे पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट्स को 11th स्टैंडर्ड। सो अब अभी तो अपन ना CET की तैयारी कर सकते हैं, ना अपन IIT की तैयारी कर सकते हैं, ये सब तो 11th स्टैंडर्ड में ये बच्चे पढ़ेंगे। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशनल मैथमेटिक्स इज बेसिकली मेकिंग देम थिंक इन एन एनालिटिकल मैनर। अब एनालिटिकल अप्रोच CET में भी फायदा होगा, एनालिटिकल अप्रोच का IIT JEE एडवांस में भी फायदा। तो सही जो it will definitely help. Answer is in short, it will definitely help. पूछिए, सवाल पूछिए। एंड सर, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो 24th को है, इसके लिए कोई ऐसा जो सिलेबस ऐसा यही रहेगा जो इन्होंने अभी तक पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स? हाँ, I don't want them to prepare anything जो नॉर्मल तरीके से पढ़ के आएंगे, तो अपने लिए ट्रू पोटेंशियल चेक होएगा सर, कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। मैं एज अ फादर आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर इसने इस एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं करा, तो मेरा राय आपको और मेरा सजेशन रहेगा कि ये अच्छा या बुरा नहीं है, अभी इसके काफी सारे फाउंडेशनल गैप्स हैं, तो तब बच्ची को अभी कंसंट्रेट करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के पे ही, जिससे उसके फाउंडेशन तो बिल्ड हो। अपन अभी इसको, वो जो मैंने कहावत में वापस रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, नहीं, अभी पहले अपने पास जो है वो तो तैयारी करें अपन, एंड इसकी तैयारी फिर अपन अगले साल करेंगे जब IIT के लिए जाएंगे या CET के लिए जाएंगे। अभी हम हमारे फाउंडेशन के गैप्स को तो बिल्ड करें। तो मैं नहीं चाहूंगा
कि इसके अंदर कोई बच्चा स्पेशली इसकी तैयारी कर रहा है और इसमें कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है कि मेरा कुछ मिस हो गया। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है, वो ये फाउंडेशन एंड आईआईटी की ट्रेनिंग के नाम पे अलग अलग जगह ज्वाइन कर लेते हैं और फिर आगे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी नंबर कम आते हैं और उधर भी सिलेक्शन नहीं होता है। आई डोंट वांट स्टूडेंट्स टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ, बिकॉज कई बच्चों में सब मेच्योरिटी नहीं आती है। मैंने देखा है जो बच्चे 16 साल की उम्र के होते हैं, 15-16 साल की उम्र में होते हैं, जैसे लड़कों में तो स्पेशली है, लड़कियों में तो फिर भी मेच्योरिटी थोड़ी जल्दी आती है, लड़कों में तो मेच्योरिटी और 1.5-2 साल बाद आती है, तो वो मेच्योरिटी नहीं आती। अब उनको पहले से वो कर दो तो वो और मतलब उसके पोटेंशियल से अंडर पोटेंशियल परफॉर्म होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गेट द राइट पोटेंशियल एंड देन डू इट। Right. Thank you. Thanks. Thank you. More questions? So if you have no more questions, we are done with the presentation. We will be sending out. मैं ये वापस एक शेयर स्क्रीन करता हूँ और ये जो दो चीजें मैंने बोली थी इसको वापस मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। See, this is where you could send. Please note down this number 7710004690. इस पे हाई भेजेंगे तो आज की पीपीटी आपको व्हाट्सएप हो जाएगी। आई रिपीट दी नंबर 7710004690. इस पे आप भेजेंगे तो आपको पीपीटी वो हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू मीट मी इंडिविजुअली तो आप प्लीज इस पे बात करें। हाँ, मिसेस सुरजीत को फोन लगाएं, 9137852270 पे फोन लगाएं एंड हर ईमेल इज UTNM Surjit। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नीचे वाले में सुरजीत में आर नहीं आया है ओवर हियर, सो दिस इज टू बी रेड एज सुरजीत। दिस इज करेक्ट, इधर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो रीड इट एज utnmsurjit@gmail.com and this is the number 9137852270. You may get either Ruksar or Surjit on this number. Ask for my personal appointment and they'll give you my personal appointment अगर आपको मेल से मिलके बात करनी है तो। So that's all from my side. Thank you very much. Let's move ahead and you can exit this presentation. Thank you very much. Chalo. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.